So, hello students, welcome to Mindspace School of Mathematics. We have been going through J Mains 22nd Gen evening shift paper. Alright, already up to 9 questions के solutions आपके पास हैं. आज मैं उसके बाद वाले questions के बारे में बात करूंगा. So, चलिए डिले करे बिना शुरू करते हैं. Like the question number 10 3D से बहुत अच्छा question पूछा हुआ इन्होंने. The line, let L be the line this and S be the set of points ABC on L whose distance from the line, another line is given to you, along the line L is 7. Understood? So the simple thing is there is a line, L be the line on L be the line, S be set of points. अब जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, this is a line, got it? S be the set of points on L whose distance from this line along L is 7. अब एक दूसरी line है, let this is L and this line let's call it P. Got it? Now set of points on L whose distance from this line P along L is 7. ये question है. Understood? So to get through this, first of all क्या requirement है मेरी कि मैं P और L का point of intersection निकालूं. For that, a point on L, I can assume that 2 lambda minus 1, 3 lambda minus 1, 6 lambda minus 3. And a point on P, 2 mu minus 1, 3 mu minus 1 and 9. Now point जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, for their point of intersection, for their point of intersection, see 2 lambda minus 1 should be 2 mu minus 1, that means lambda equals to mu. 3 lambda minus 1 is 3 mu minus 1, again lambda equals to mu. If I do third equality, 6 lambda minus 3 is 9. From there you get lambda as 2. Got it? Lambda 2, then mu is also 2. Now you put lambda or you put mu, you will get this point of intersection. Point of intersection will be, अगर मैं lambda को 2 रखता हूँ, 3, 5, 9. Got it? अब मैं L पे एक पॉइंट मानता हूँ. A, B, C जो उसने मुझे कहा है, let us assume that point is 2k minus 1, 3k minus 1, 6k minus 3. Understood? Say this point of intersection is R, this point is S. So RS is given to you as 7. अब RS पे हम distance formula लगाएंगे. So it is 2k minus 4 whole square, 3k minus 6 whole square, 6k minus 12 whole square is equals to 49. If I take from the first bracket 2 common, k minus 2, 3 common from the second bracket, k minus 2, 6 common. So मैं ऐसा करता हूँ k minus 2 का whole square बाहर ही निकाल लेता हूँ. It will be 4 plus 9 plus 36 goes 49. So k minus 2 whole square is 1. So k minus 2 is plus minus 1. From there values of k will be either 3 or it is 1. अब अगर k 3 है तो जो ABC पॉइंट आना है दैट इज गोइंग टू बी 5, 8, 15. Point ABC is 5, 8 and 15. Got it? Now if k is 1, in that case ABC is going to be, put 1 in S, that is 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 8, 15.
अब उन्होंने सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आपसे पूछा है, विच इज नॉट ए टफ टास्क फॉर यू, वो आप इजिली निकाल पाओगे। अंडरस्टूड? अभी कुछ सिंपल क्वेश्चन है, बस हाँ हमारे मन में 3D को लेके फोबिया नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज एन इजी ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। लेट P 10, 2 root 15 be the point on this hyperbola whose foci are S and S dash. Length of the latest rectum is 8। ठीक है, सिंपल सी बात है, मुझे ये हाइपरबोला की इक्वेशन फिगर आउट करनी है। मेरे को दो कंडीशंस उन्होंने दी हैं। एक तो P लाइज ऑन द हाइपरबोला, दैट मीन्स 100/a² माइनस 60/b² इज इक्वल्स टू 1। एक तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया ए और बी का। अनदर इज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 8, मतलब 2b² इज इक्वल्स टू 8। सो b² इज इक्वल्स टू 4a। गॉट इट? इसको आप उठा के इसमें प्लेस कर दो और इस पूरे क्वेश्चन को, हमारा पर्पस बस ए और बी के लिए सॉल्व करना है, देन वी आर सॉर्टेड। सो इट इज 100/a² माइनस 60/4a इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट? इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे करते हैं, 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। सो इट इज 400 माइनस 60a इज इक्वल्स टू 4a²। सो इट इज 4a² प्लस 60a माइनस 400 इक्वल्स टू 0। इसको 4 से तो कैंसिल कर ही देता हूँ, तो a² प्लस 15a माइनस 100 इक्वल्स टू 0। फेयर इनफ? नाउ 100 के फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके 15 आए, 20 एंड 5, सो इट इज a प्लस 20 a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a गोज 5। नाउ इफ a इज 5 देन b² इज 20। तो मेरे पास में हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई है, x²/25 माइनस y²/20 इज इक्वल्स टू 1। मेरा काफी हद तक काम हो गया। नाउ स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एस डैश। ठीक है, मतलब कि ये आपका हाइपरबोला है, ये इसके फोकाई हैं एस एस डैश, यहाँ पे दिस पॉइंट इज पी, सो दे आर आस्किंग फॉर द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। देखो बेस लेंथ अगर मुझे एस एस डैश मिल जाएगी तो मेरा काम चल गया। नाउ एस एस डैश जो कि फोकल लेंथ है, दैट विल बी 2AE। सो 2 ए की वैल्यू है 5 एंड E is under root of 1 plus 20/25, 1 plus b² by a²। So 10 under root of 1 plus 4 by 5, so it is 30/√5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6√5। So area of triangle PSS dash will be half, base length is 6√5 and height will be what? Height will be the y coordinate of P point, that is 2√50। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट इज 30√3। दे आर आस्किंग फॉर स्क्वायर ऑफ द एरिया, बस अब आप कर दो, ठीक है ना, 2700 विल बी योर आंसर। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा इसको कोई नॉलेज ही नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। आप सोचो इस लेवल का हाइपरबोला हमने एनसीईआरटी में किया है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा उन्होंने। All right, one more question here to take care. The area of the region, अब देखो ये एक तो एलिप्स है मेरे पास, x²/2 y²/8 इक्वल्स टू 1, उसके अंदर के सारे पॉइंट्स। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। गॉट इट? इस तरह का ये एलिप्स आएगा। Another is y² equals to 4x. y² equals to 4x is this parabola. Something.
Now, things to notice here, what they're asking for, see, less than or equals to 8, मतलब इलिप्स के अंदर के सारे पॉइंट, ओके, वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4x. अब आप एक छोटी चीज सोचो, say 1 comma 0 point, this not this particular point, 1 comma 0, is it satisfying this? Yes. मतलब पैराबोला के भी अंदर के सारे पॉइंट. सो द एरिया जो वो आपसे पूछ रहे हैं वो ये वाला एरिया है सर. गॉट इट. उसके लिए काम करते हैं, अगर मुझे ये वाले वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए यहाँ पे, तो मैं ये जो एरिया है ये y1 से y2 निकाल दूंगा. उसके लिए मुझे दोनों कर्व को सोल्व करना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 8 इक्वल्स टू 1. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. सो इट इज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये तो देख के पता लग रहा है कि x की वैल्यू -2 नहीं है, तो योर x इज 1. नाउ x इज 1, देन y इज प्लस माइनस 2. सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 कॉमा -2 एंड दिस पॉइंट इज 1 कॉमा 2. तो अब इसका एरिया लिखेंगे हम. एरिया क्या बन जाएगा इसका? एरिया विल बी इंटीग्रेशन. ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकालूंगा और इसको डबल कर देंगे. ऑल राइट. सो एरिया विल बी इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, 0 से लेके 2. अब अपर कर्व, ठीक है, अगर मैं अपर कर्व सोचूं, अपर कर्व इलिप्स है, ये एरिया क्या जाएगा? x dy. तो x को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगा, सो इट विल बी 8 माइनस वाई स्क्वायर, 8 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 का रूट. यही आएगा. x को अगर इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, देन इट विल बी 8 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पैराबोला की तरफ से x को y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, एक सेकेंड ऐसा करते हैं. ऑल राइट. एंड वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई, ये आएगा. अपर कर्व क्या था? इलिप्स का, वो मैंने लिख लिया x को इन टर्म्स ऑफ y. लोअर कर्व क्या है? पैराबोला का, वो मैंने लिख लिया x को इन टर्म्स ऑफ y मल्टीप्लाइड उसको dy, और लिमिट हो गई इसकी y कोऑर्डिनेट वेरिंग फ्रॉम 0 to 2, और इसका कर देंगे डबल. गॉट इट. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटीग्रेशन 0 to 2. थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 8 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई. चलिए अब इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं इसमें. सो 8 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y बाई 2 अंडर रूट 8 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो इसको लिखेंगे 8 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन 2 रूट 2. इसकी लिमिट हो गई 0 से 2 माइनस हाफ टाइम्स वाई क्यूब बाई 3, इसकी भी लिमिट 0 to 2. नाउ जब मैं अपर लिमिट प्लेस करूंगा, अब आपने बस लिमिट्स प्लेस करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा. अपर लिमिट प्लेस करेंगे तो इट विल बी 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 4 4 प्लस 4 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, दैट इज पाई बाई 4. जीरो रखने पे ये सब जीरो है, माइनस 8 अपॉन 6. Am I correct? So this is going to be pi plus 2 minus 4 upon 3. That is pi plus 2 upon 3 square units. That's it. और ये अपना करेक्ट आंसर है. ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करें, क्योंकि हमें जनरली एक्स डी वाई की आदत ज़्यादा पड़ी होती है, तो अनडाउटली वो एक कन्वीनियंट ऑप्शन है. तो आप ऐसा करना कि ये भी कर सकते हो वाई डी एक्स के हिसाब से अगर करना चाहें, तो पैराबोला का ये वाला एरिया और इलिप्स का ये वाला एरिया, तो ये हम सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी अपने को पूरी कन्वीनियंस है.
ऑल राइट, चलिए दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। और 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 मैं आसान कैटेगरी में रखूंगा। इस तरह के सवाल में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बट आपने नोटिस किया तीनों ही क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी की सीमाओं में है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ऑल राइट, दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में इसकी आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।